Hi friends, welcome to INSPI Genius for JEE IIT-JEE 2020. This session is about the projectile motion which comes under the kinematic 2 dimension. We already had studied about the kinematic 1 dimension, now the kinematic 2 dimension. So today's topic is projectile motion. So let us start with the topic. Projectile motion. First we have to understand what is actually the projectile and that when object is in projectile, that is called the motion. So if you can see on the screen, there is a pump throwing a water. If you can see what is the trajectory of that flow of water, this is like upward to the maximum height and then coming downward. This is nothing but the parabolic. This is the parabola. So it is clear, when an object is thrown in a air or a free space, the object will move in like this trajectory. So this is the projectile motion. Just to give you the mapping of what is actually projectile. प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हमारे को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ दी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या. दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल. इफ़ यू कैन सी अ प्लेयर इज थ्रोइंग अ बॉल इनटू अ बास्केट. सो at what angle he has to throw so that the ball exactly comes into the basket. So for that, what we do, we make some angle. So that is our imagination. So if अगर हम इस एंगल से थ्रो करेंगे तो बास्केट शायद बॉल जो है शायद उस बास्केट के अंदर गिर जाएगी. सो विद दैट मेक एंगल बाय आवर सेल्फ. दैट इज बाय प्लेइंग एज अ प्लेयर उनको आइडिया हो जाता है कि हम किस एंगल से थ्रो करें, कितने दूर से कितने एंगल से थ्रो करें कि बॉल जो है एग्जैक्टली बास्केट में गिरे. बट what is the trajectory of that ball? That is not the straight, that is in like this. The ball is moving in this way, is going up to the maximum height and then coming down like this. This is nothing but the projectile motion, and we can say that it is the parabolic path. I can show you more figure. Yes, a player is thrown a ball into the basket. There's a basket ball ground on which a player is throwing a ball into the basket. So this is the trajectory, this is the path the ball is moving on to exact drop into the basket. You can see in the second figure that archery, the man is making his aim to the target by making some angle, that is approx angle, so that this arrow will exactly hit the target area. So in this he has to make some angle, and again the path will, you can see the path will like this. Maybe this is the path. So this is not the exact straight line, this is making some angle with the horizontal. This is theta. So we can say whenever we throw an object in air, so it will make trajectory, and that is nothing the parabolic path, and that motion is called the projectile motion. So make like, subscribe for early updates. Thank you. Now this is all about the projectile की projectile actually होता क्या है. Now we are coming to the technical points कि how the parameters, that is the distance, time, displacement, acceleration, velocity, how they are correlated with each other in this. So one by one we take the parameters and discuss how it will take place in this projectile motion. Now you can see on this screen if you can see on this screen, a football is at the origin. This is the origin, and the football is placed, a person means a player when kicks a ball, it will follow the path like X, A, B, then the final point on the ground. This is the trajectory, this is the parabolic, and this motion is the projectile
motion. The ball, now we can see in visual view, a ball is moving in this way. A player has kicked the ball and it is moving like this on the ground. So this is the actually visualization of the object in air. So now if we are considering an object is thrown in a air, then there are some assumptions to be taken out for this projectile motion. What are those assumptions? That assumptions has to be taken means if we are considering a earth, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये सारा जो हो रहा है वो अर्थ सरफेस पे हो रहा है एंड अर्थ इज लाइक sphere. So we take it very small part. This experiment, whole experiment is carried out near to the surface of the earth. Near to the earth surface means अर्थ का एक पार्ट लेंगे एंड दैट विल ट्रीटेड एज अ प्लेन. उस अर्थ का पार्ट हम लेंगे दैट इज एज अ प्लेन. वो एक हमें एक स्ट्रेट पाथ दिखाई देगा. सो दिस इज वन ऑफ द एजम्पशन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कैन बी कंसिडर्ड इज कांस्टेंट. व्हाई कांस्टेंट? हमने ग्रेविटेशन में हम अभी आगे पढ़ेंगे या काफ़ी ने पढ़ लिया होगा दैट अबाउट द ग्रेविटेशन कि ग्रेविटी जो होती है जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है. सो अगर हम एक मेजर हाइट लेते हैं तो ग्रेविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. बट इन दिस केस प्रोजेक्टाइल मोशन वी टेक g एज कांस्टेंट. व्हाट इज g? What is g? This is the acceleration due to gravity. This is the acceleration due to gravity. We take acceleration to be constant. Now एक हो गया कि अर्थ को हमने फ्लैट सरफेस ले लिया. अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट and the acceleration due to gravity, that is the magnitude, is to be considered as constant in particular direction. And one of the most important is the air resistance. The effect of air resistance will be ignored. Air resistance को हम ignore करते हैं इस केस में. So these are the assumption that we are going to take in the projectile motion. Now the projectile motion जो मैंने बात कही कि एक object when it is moving in a free space or in air, it will follow the path like this. So as soon as it starts in its motion, तो क्या वेलोसिटी होगी जिससे मूव करेगा? क्या वेलोसिटी होगी एट सर्टेन टाइम? कैसे मूव करेगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इट इज़ ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम. इट इज़ 2D. टू डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन एज वेल इन एक्स डायरेक्शन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है किसी एक प्लेन में मूव कर रहा है. इसका मतलब उसके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई के. इतना समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मूव करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे अगर फिगर के अंदर आप देखो तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है. पहले हम इसका प्रोजेक्टाइल को चेकआउट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल कैसे हो रहा है. देखो अभी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, बॉल इज मूविंग इन प्रोजेक्टाइल. ए पे आया, ए पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ये अप भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है. अब यहाँ पे इसके पे वेलोसिटी क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी. एक बार फिर देखते हैं इसको. ये देखो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ये राइज कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. बी पे आने के बाद क्या हुआ? ये सिर्फ सीधे गया, ऊपर नहीं गया. बी के बाद क्या हुआ? ये नीचे आ गया बट आगे तो बढ़ ही रहा है. तो हमने 3 स्टेजेस देखी इसमें. 3 स्टेज कौन सी आई? एट ए पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ रहा है. किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? यहाँ पे था
यहाँ आ गया तो ये फॉरवर्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे था और यहाँ आ गया, यानी कि वर्टिकल भी बढ़ रहा है। यानी कि दो तरीके के मोशन एक साथ हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक बात का ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो दीज टू आर नॉट बीन मिक्स मैचेस, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल अगर ले रहे हैं तो वी ओनली पुट दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम सिर्फ वर्टिकल की ही बात करेंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दी प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट वी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो इन दिस केस इफ यू टेक अब एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया। उसको अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव किया, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट उसको मिला, लेट इट बी इनिशियल वेलोसिटी वी u, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर u है कोऑर्डिनेट है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा। so these are the component of the velocity. As such, as we reach to point A, again the velocity is horizontal and vertical. horizontal component, vertical component जो है कैसे चेंज करेंगे हम वो अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन भी आएगी, एक्सेलरेशन भी दो आ रही हैं। दो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, ए एक्स आएगी यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गई, और ए वाई हो गई यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन हो गई। तो एक्सेलरेशन भी दो आई हैं, वेलोसिटी भी दो हो गई हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वर्टिकल हो रहा है और हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कहाँ से कहाँ हुआ, एक्स से लेके फाइनल जहाँ पे ये ऑन द सेम फ्लोर गिरेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट तक होगा कि पी, अगर हम इसको देखें वर्टिकली फ्रॉम दी 0 0 टू दिस इज एच, सो दिस इज दी वर्टिकल मेजरमेंट, यानी वर्टिकल हाइट जो मैक्सिमम इसने अटेंड करी दैट इज एच। एट सर्टेन टाइम वो हाइट चेंज करता चला जा रहा है अपनी, बट एट मैक्सिमम पॉइंट इट इज दी एच ओनली। और हॉरिजॉन्टल भी ऐसे ही केस बनेगा। टाइम क्या होगा, टाइम का हम देखेंगे, चलो आगे हम चलते हैं, पहले नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन कंपोनेंट। लो एक्सेलरेशन कंसेप्ट को समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, ओरिजिन पे रखा हुआ था। नाउ इट स्टार्ट मूविंग, इट स्टार्ट मूविंग, कैसे मूव कर रहा है, इन टू डायरेक्शंस, इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन जो होता है, दैट एक्सेलरेशन जो है वो x होता है और y होता है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम x की बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे ax, और अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो हम उसे ay कहेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो कंपोनेंट होगा वो होगा ax इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट जो रहेगी वो क्या रहेगी, u cos थीटा रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज करती रहेगी एज पर द टाइम। और ए वाई क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज प्लस माइनस जी। यहाँ प्लस माइनस क्यों बोला गया है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हेन इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट, उसके बाद इसका मोशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ दो तरीके के मोशन हो गए, दैट इज अपवर्ड मोशन एंड द डाउनवर्ड मोशन। जब अपवर्ड जाएगा तो वो क्या है, अर्थ की सरफेस से क्या हो रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, सो वी टेक इट नेगेटिव, दिस इज द साइन कन्वेंशन। एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउनवर्ड, तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ आ रहा है, तो ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, प्लस लेते हैं, तो इट इज बी प्लस। so this is a sign convention that we are going to use in the numericals.
So accordingly we are going to plug in the signs in the numerical for the acceleration due to gravity, that is only for the vertical motion. Horizontal component अगर हम acceleration कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, that is 0. So this is all about the acceleration कि acceleration कैसा होगा जब हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं या वर्टिकल ले रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल केस में एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज 0, और वर्टिकल केस अगर हम लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस जी. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड square, and that will remain constant. This is one of the assumption that we have taken for the projectile motion, that is we are always taking 9.8, or in numerical it is given that 10. Okay, so let us move to next concept, that is a velocity. We already talked about the velocity. What is the velocity? कि velocity जो है अगर हम initially अगर हम इसको चेकआउट करें कि इसकी इनिशियल इट इज़ थ्रोन एट सम एंगल, किसी एंगल पे इसको थ्रो किया गया एट थीटा, तो वो क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी. v जो होती है वो होती है वेलोसिटी एट एनी टाइम, दैट इज कहते हैं उसको फाइनल velocity at that particular time, at that instant. तो v निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वेशन, मोशन इक्वेशंस की यूज़ करेंगे. इनिशियली अगर हम देखें वेलोसिटीज जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगी, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, दैट इज u cos थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, u sin थीटा. ये मेरे ख्याल से बहुत ईजिली क्लियर होगा कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, इसका एंगल हम थीटा लेते हैं और इसका जो साइड होगा उसको हॉरिजॉन्टल बेस जो होता है दैट इज ऑफ द कॉस थीटा, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑफ दैट एंगल. तो इनिशियल वेलोसिटीज जो होंगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो क्या होंगी, u sin थीटा एंड u cos थीटा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल. याद रखना ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं. नाउ कमिंग अप टू द velocity, that is the final velocity at any time. What is that? v is equal to u plus a t. This is the linear equation. v at any time t अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा. ठीक है, g एक्सेलरेशन जो होगी क्या होगी, प्लस माइनस g इंटू टी. सो दिस इज द वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में है, दिस इज इन y. यहाँ पे हमने ये y का रखा है, ये y का रखा है और ये y का. दिस इज द वेलोसिटी इन व्हाट, वर्टिकल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, vx रखेंगे, vx यानी कि ux प्लस ax इंटू टी. vx क्या हो जाएगा, ux की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, u cos थीटा, बट हेयर द ax इज व्हाट, 0. हमने अभी बात करी कि एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है, 0 होता है. तो ये क्या हो जाएगा, vx जो हो जाएगा u cos थीटा. यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि यानी कि vx जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. सो वेलोसिटी से हमने एक चीज़ निकाल ली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, दैट इज u cos थीटा. एंड वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वी हैव टू पुट द पर्टिकुलर वैल्यूज इनटू द इक्वेशन and we get the velocity at that particular time or at that instant, that is vy is equal to u sin theta. This is the initial velocity in y direction, u sin theta plus minus gt, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उस टाइम पे रखेंगे तो प्लस माइनस का हमने कंसेप्ट पढ़ ही लिया था कि प्लस माइनस क्यों, व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड वी पुट माइनस एंड व्हेन इट इज गोइंग डाउनवर्ड वी पुट प्लस. सो accordingly we put the sign conventional. So this is the velocity, all about the velocity in projectile motion. I think it is very much clear.
Now the displacement. Now displacement is what? What is the displacement? When object start moving from initial point, if an object is thrown, तो वो कैसे मूव करेगा? प्रोजेक्टाइल में मूव कर रहा है, यानी 2D में मूव कर रहा है, और 2D में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वर्टिकल भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है. तो सिंपली वी कैन पुट इन इक्वेशन दैट S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब हमें वर्टिकल लेना है तो हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, यानी कि y ले लेते हैं. y मैंने y का वैल्यू रखा है एट एनी टाइम t. y की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी. u की जगह हम क्या डालेंगे? u, क्योंकि y कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? u साइन थीटा. ठीक है, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट. और टाइम t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. So by plugging all the values from the data that we are given in the numericals, we get the vertical displacement of the object. Now what is the horizontal? X equals to ux into t. Now the acceleration, that is ax, is 0. So the next term, half AT square, is 0. Simply we get x is equal to u cos theta. This is a ux into t. So this is the horizontal displacement. So here we get two displacement at a particular time. We get the vertical, we get the horizontal displacement. So this is the displacement concept of the projectile motion. Now next, that is a time concept. टाइम के लिए क्या है? टाइम के लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि एट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. भाई प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसे हो रहा है, एक ही टाइम पे वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी मूव कर रहा है. अगर हम इसको देखते हैं, फिगर आउट में देखते हैं, इसको देखो, मैंने यहाँ पे दो तरीके के बॉल्स बनाई हुई हैं. दैट इज़ एक्चुअल जो मोशन हो रहा है, एक्चुअल जो मोशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? द एक्चुअल मोशन is of this object, this, that is the initial position, and it starts moving. वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो यहाँ पे वर्टिकल के लिए हमने ये वाली बॉल को कंसीडर कर लिया है, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये मोशन दिखाएगा. इसी बॉल का ये हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, इसी बॉल का ये वर्टिकल दिखाएगा मोशन. तो अगर वो बॉल यहाँ पहुँचती है, यानी कि ये बॉल अगर यहाँ पहुँचती है, तो इसका वर्टिकल मोशन कितना हो गया? यानी कि इसका हाइट के बराबर हो जाएगा. तो उस बॉल को यहाँ पहुँचना चाहिए. उसी ही टाइम पे इस बॉल को कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, जो कि इसी बॉल की इमेजिनरी पार्ट है, जो कि दिखाएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन किस टाइप का है. अब हम देखते हैं कि एक ही टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है. यानी कि अगर हम देखें, इस टाइम पे देखें, तो बॉल तो एक ही, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन उसने कैसे कंसीडर किया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एट द सेम टाइम. तो यहाँ टाइम का कंसेप्ट ऐसा आ गया कि अगर हमें बोला जाए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन के लिए टाइम क्या होगा? सेम होगा. तो यहाँ से अगर चल के वो फाइनल पोजीशन पे पहुँचती है, तो उसने टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया, और वर्टिकल कैसा किया? ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो ये वर्टिकल मोशन हो गया. तो उसने टोटल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया वो कितना किया? अगर हम मैक्सिमम हाइट लें, h लेते हैं, तो 2h ले लिया, गया और वापस आया. और यहाँ से दिस इज कॉल्ड द रेंज. अब हम एक रेंज का कंसेप्ट समझते हैं कि ये रेंज क्या होता है. मैंने वर्ड रेंज यूज़ किया. रेंज का मतलब होता है जब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन ऑन द सेम लेवल अगर मूव करता है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेंज. दैट इज नेम्ड एज
रेंज। वर्टिकल मोशन मैक्सिमम हाइट जाता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। And when object starts from initial position and reaches to final position in the total time of flight, that is called the time of flight. Each and every term has its formula. इनका अपना एक फॉर्मूला जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। आई थिंक टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है यहाँ पे, उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो मैक्सिमम हाइट से वापस अपनी सेम ग्राउंड लेवल पे आता है तो उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज अ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कि अगर हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड कर दें तो वी गेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, एसेंट प्लस डिसेंट। सो दिस इज द टाइम कंसेप्ट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, यानी अगर हम इसको देखें टोटल रेंज अगर हम लेते हैं, ये आर है, तो इसका टाइम और वर्टिकल मोशन का जाके वापस आना, यानी वर्टिकल मोशन में हमें उसका टाइम क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज द टाइम कंसेप्ट। नाउ लेट अस मेक अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है टिल दिस, वी जस्ट टेक अ समरी ऑफ दिस। An object is at A position, reaches to B, then C, then D and E. अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक मोशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड द इक्वेशन दैट इज ट्रेजेक्टिकल पाथ। तो यहाँ पे जो ये पाथ बना रहा है, पहली बात ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। दूसरा, हमने जो कंपोनेंट्स की बात करी थी, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u होता है। इनिशियल वेलोसिटी u किसी एंगल थ्रो कर रहा है तो वो क्या होगा, थीटा होगा। उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज u cos थीटा, दिस इज u cos थीटा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है डाउनवर्ड होगी। हम इसको चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वाले कंसेप्ट में चलते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमने देखी वो क्या है, हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमेशा अर्थ के सरफेस पे ही जाएगी। इसलिए हमने इसका जो दिखाया, किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे वो मैक्सिमम हाइट पे हो, चाहे वो नीचे आ रहा हो, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नीचे की ही तरफ होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एंड दिस इज ऑल अबाउट दी समरी की हम बात कर रहे थे। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कि ए एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, और ए वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस जी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वी सिंपली पुट इन द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जो v होगा वो y का कंपोनेंट होगा, एक्सेलरेशन मैंने g डाली दी है, और x के लिए हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। ये कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो दिस इज दी x, y एंड, तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी have some basic formulas that we have to retain in ourselves, कि कुछ formulas हैं जो कि हमें अपने जो हमें याद रखने होंगे। What is that? अगर हम acceleration की बात करें that is we have to use in this। velocity की अगर बात करें तो velocity components को हमने निकाल लिया था। So मैं आपको formulas बता देता हूँ। that is for the time of flight,
time of flight, we use t as 2u sin theta over g. So this is the time of flight. ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से लेके है, यहाँ से लेके यहाँ तक का. अगर हमें हाफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे t/2 कर देंगे. दैट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल जाएगा. तो हाफ कर देंगे तो दैट इज t/2 विच इज इक्वल टू u sin theta upon g. दिस इज द हाफ टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज द रेंज. रेंज का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो रेंज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड द रेंज. एंड दैट फॉर्मूला दैट्स कम्स आउट टू बी आफ्टर डिराइविंग इट u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द range. Now what is the maximum height? Maximum height is this. At the maximum height the h max equals to, we can derive the formula as u square sin square theta upon 2g. So these three formulas that you have to learn, or we have to grab it for the numerical section. वेलोसिटीज़ के अंदर एक चीज़ और का ध्यान रखना कि वेलोसिटीज़ में अगर हम बात करते हैं, हमने देखा कि वेलोसिटीज़ जब मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ से जब जा रहा है वो अपवर्ड मोशन है और यहाँ से जब जा रहा है तो डाउनवर्ड मोशन रहा है. तो ये जो हो गया वर्टिकल डाउनवर्ड हुआ, ये क्या हुआ वर्टिकल अपवर्ड हुआ. बट वी एक्स जो हो जाएगा वो हमेशा फॉरवर्ड ही रहेगा. एट द हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो दिस इज दी ओनली वी एक्स रह जाएगा, दैट इज यू कॉस थीटा. बट वी वाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. यानी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वी पुट वी वाई इक्वल्स टू 0, बिकॉज उसके बाद तो ऊपर जा ही नहीं रहा ना. बी पॉइंट पे अगर हम देखें उसके बाद वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया वेलोसिटी का, वो 0 हो गया. उसके बाद वो डाउनवर्ड आने लगेगा. ठीक है, यानी कि कुछ सेकेंड्स के लिए, वी कैन व्हेन टाइम इज टेंडिंग टूवर्ड्स द 0, वो कुछ सेकेंड्स के लिए या बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के लिए वो क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि वो रुक गया है, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगेगा. सो दिस इज द बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ द projectile motion. In next section I am going to take about the how to calculate the velocities, how to calculate the range, how to calculate the maximum height, time periods, and relating problems, how to find the what are the formulas that we are going to use to find out the velocities, direction, magnitudes. So this we are going to discuss in next session. So this is all about the projectile motion. So next session we will meet soon in the next sessions.